I am Garima Singh signing in for the today's video. Today we'll start with Geography chapter number 1, which is about resource and development. When I say the word resource, आप resource word से क्या समझते हैं and how this word is related to the concept of the development. Okay, so we'll be studying about the resource and development in this chapter. So, by the word resource, what do you understand? It means everything present in our environment that can satisfy the human want can be termed as resource. भाई वो कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम रिसोर्स या संसाधन बोल सकते हैं. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर एनवायरनमेंट. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, plants, animal, land, cloud, air, sun and many other things. Okay, so जितनी भी environment में हमारी चीजें हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, और जिससे हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है या हमारी नीड फुलफिल होगी, उस टर्म को हम रिसोर्स बोलेंगे. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिसोर्स को हम तब डिफाइन करने लगेंगे तो कौन से कीवर्ड्स है जो इसकी डेफिनेशन में होना बहुत जरूरी है. विदाउट दिस कीवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स इज इनकम्प्लीट. दीज आर रिसोर्स इज वॉट विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब जिसको हम जहां तक हम एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज को यूज कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी है हमारे पास उस चीज तक पहुंचने के लिए. तो नंबर 1 क्या है हमारा कीवर्ड हियर? रिसोर्स. वो होगा जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा. सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब इन टर्म्स ऑफ द मनी की बात करेंगे, इकोनॉमिकली भी वो हमें अवेलेबल होगा, फिजिबल होगा. ओके, नेक्स्ट इज लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब लोगों ने उसको अपनाया है कि उसके यूज से किसी भी कल्चर को कोई इफेक्ट नहीं होगा. Therefore, resource is what? Everything present in our environment that can be used to satisfy the human want, keeping in mind that it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, is termed as a resource. Okay guys? So this is a figure which shows human beings and the physical environment, technology and institution. Suppose this figure comes in your exam. So if they will ask you to give the title for this figure, what is the appropriate title here? As you can see, in this triangle, it shows the relationship between the humans and how humans are dependent upon the physical environment, on the technology and on the institution. When I say physical environment, it consists of our environment, our surroundings. हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ चीजें हैं, ह्यूमंस कैसे हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए. ओके, फिर ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी भी चाहिए ताकि उस रिसोर्स को एक मीनिंगफुल वे में डिफाइन करके एक नया फॉर्म दे जिसको वो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता है, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प हिम टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. ओके, अब ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज हमें कहाँ से आएगी? बिकॉज वी नीड दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जहां जाके हम नॉलेज स्किल वगैरह गेन करेंगे. देयरफॉर दिस फिगर शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द 3 मेजर फैक्टर्स विच आर फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. Coming on to the title of this figure, you can say that this figure represents the interdependent relationship between nature, technology and institution, and these are the factors on which the human beings are dependent for the resource, which will automatically in future lead to the development process. So now we have learned that human beings need resources. Why? In order to satisfy their want. Now let's come on to the classification of resources. When we classify resources, how are the resources divided into different categories? So when we classify resources, it is classified into 2 basic categories. One is natural and one is human made resource. नेचुरल मतलब जो नेचुरली अवेलेबल है वो वाले संसाधन, वो वाले रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन मीन्स जो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. ओके,
First we'll talk about the natural resources and then we'll talk about the human resources. Natural resources are again divided into two categories, renewable and non-renewable. As the word renewable मतलब renew मतलब दोबारा से नए किए जा सकते हैं, दोबारा से जनरेट या यूज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उनको बोलेंगे हम रिन्यूएबल। और जो होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल, नॉन मतलब कि वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, उनको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल को हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को हम लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है रिसोर्सेज की, बाय नाउ यू शुड बी अवेयर। यू गाइज नीड टू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स and the example of non-renewable resources in the comment section below. Now moving ahead, renewable resources again divided into two categories, continuous flow and biologically resources. Okay, so continuous flow मतलब जो continuously flow करते हैं like wind. Okay, biological resources की तब हम बात करेंगे, इसके अंदर आएंगे हमारे जो बायोलॉजिकली चीजें एग्जिस्ट करती हैं लाइक डिफरेंट नेचुरल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के अंदर सब एनिमल्स आएंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज रिसाइक्लेबल एंड अदर इज नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब दोबारा दोबारा उनकी साइकिल चल सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, एग्जाम्पल मेटल्स। एंड नॉन रिसाइक्लेबल मतलब वो साइकिल बारी बारी नहीं चलेगा, उनको दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। I hope this category is clear. Now we'll see the classification of human resources. Human resources are again divided into two categories on the basis of structure and institution. भाई कौन से क्या structure है, कौन से institution ने resource को develop किया है, and second category is कितनी quantity या क्या quality में वो resource हमारा present है। Okay, so this was it for the classification of resources. After this, now we'll switch to the type of resources. Coming on to the type of resources, first we'll see the categories on which basis the resources are divided and what all the categories include. Okay, so the number one category is on the basis of origin, मतलब कहाँ से वो आते हैं, origin क्या है उनका, base क्या है। Okay, so on the basis of origin it is divided into two parts, biotic and abiotic resource. Okay, when I say biotic it means it is obtained from the biosphere and have life, living things से आ रही हैं वो जो resources है, तो उसको हम बोलेंगे biotic resources. Example our flora and fauna. Flora means the plants and fauna means the wildlife animals. Okay, now second category here is abiotic resource. Abiotic resource means the resource coming from the non-living beings. Okay, जिनके पास लाइफ नहीं है जिन चीज़ों में, वहाँ से ये रिसोर्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। ओके, सेकेंड टाइप इज वी डिवाइड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या यूज करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्या वो खत्म हो जाएगा रिसोर्स। ओके, तो उस पे बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, व्हेन आई से रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है फिर से। ओके, एंड दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ओके, अगर रिप्लेनिशेबल रिसोर्स आ जाए तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट मीन्स द रिन्यूएबल रिसोर्स ओनली। ओके, एग्जाम्पल हियर सोलर एनर्जी, वाटर एक्सेट्रा। Okay, now another thing here is non-renewable resource. When I say non-renewable resource, it means ये वाले जो संसाधन है, ये जो resources हैं, they take million and million of years for their formation. Okay, and what is the average life of a human being? It is around 66 years. तो 66 ईयर में एक ह्यूमन लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की लाइफ साइकिल क्या है, दे टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड, से मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको फॉर्म करने में, ओके, रीजनरेट होने में। देयरफॉर दीज आर टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके,
Now again, renewable non-renewable resource is again divided into two categories. One is recyclable and another is non-recyclable. Okay, recyclable मतलब जो दोबारा यूज करे जा सकते हैं, जैसे मेटल्स हैं उनको हम डिफॉर्म करके दूसरी शेप दे सकते हैं और दूसरी यूज में लगा सकते हैं. नॉन रिसाइक्लेबल मतलब जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल जिनको हम एक बार यूज करेंगे तो वन यूज के बाद खत्म है. फॉर एग्जाम्पल वुड. ओके, सो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. That's it for the resources in the category of exhaustibility. Now next category is we divide resources on the basis of ownership. Okay, ownership मतलब उसका owner कौन है, उसका मालिक कौन है उस resource का. Okay, number one is individual resources. मतलब वो वाले resources जो हम privately अपने use के लिए खुद रखते हैं, प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आवर हाउस, तुम्हारा घर है तो तुम्हारा ही घर है. मैं ये तो नहीं बोल सकती ना मेरा घर भी है मैं भी आ सकती हूँ. नो, बिकॉज दैट इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स, योर लैंड, तुम्हारी जमीन. ओके, नाउ कम्स द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स. ये एक ऐसे रिसोर्स है विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल. ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, सब लोग इनको यूज कर सकते हैं. कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी रिसोर्स मतलब कि सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, वहां तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज द कम्युनिटी रिसोर्स. ओके, so next category here is national resource and international resource. These are also in the category of the ownership. Okay, तो ownership में हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. अब हम देखेंगे नेशनल रिसोर्स क्या है. नेशनल जैसे नाम से पता चलता है भाई पर्टिकुलरली किसी एक देश का है, एक नेशन के रिसोर्सेज हैं. ओके, तो टेक्निकली वो रिसोर्सेज उस देश के ही हैं. अब जितने भी रिसोर्सेज which will lie within the political and the oceanic boundary of our country that will belong to the country India, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मिनरल्स, जितने भी रेलवे, लैंड, रोड्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर है, विद इन आवर बाउंड्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स. ओके, और ओशियनिक बाउंड्री हमारी क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स. तो हम पानी में देखते हैं तो कितना एरिया, कितने डिस्टेंस हम कवर करते हैं, हम नॉटिकल माइल्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इनटू वाटर्स. तो ये हमारी 12 नॉटिकल माइल्स है. ओके, देन कम्स द इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होंगे, जब हम ओशियनिक बाउंड्री की बात करते हैं इंडिया की, दैट इज अप टू दी 12 नॉटिकल माइल्स. ओके, लेकिन उसके आगे हम अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स जाते हैं इनटू दी वाटर, पानी वाले एरिया में. तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हम उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. मतलब इधर इस इकोनॉमिक जोन में एक्सक्लूसिवली एक नेशन यहाँ आके अपने रिसोर्सेज निकाल सकता है, पानी वाले रिसोर्सेज यूज कर सकता है. ओके, लेकिन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के आगे वाला एरिया, ऐसा तो है नहीं पूरा समुद्र हमारा हो गया, तो उस समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. उसके आगे अगर हमें जितना भी ओपन ओशन है, उस अगर ओशन में जाके उस वाटर के हमें बेनिफिट उठाना है, तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेशन वहां जाके एक्सेस नहीं कर सकता उन रिसोर्सेज को विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्करेंस. हमें इंटरनेशनली इंस्टीट्यूट्स है बहुत सारे, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर मूविंग अहेड दिस 200 नॉटिकल माइल्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमें पता चला ओनरशिप की बेसिस पे इंडिविजुअल विच इज प्राइवेट, कम्युनिटी मतलब सब लोगों के लिए, नेशनल मतलब एक पर्टिकुलर देश के लिए है, और इंटरनेशनल मतलब जो हमारी देश की बाउंड्री से बाहर लाई करता है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स बोलेंगे. कैटेगरी हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब कितना रिसोर्स को डेवलप किया जा चुका है कि जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं. ओके, इनटू दिस कैटेगरी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट द पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब है जिसकी हमें पता है कि इस रीजन में, इस क्षेत्र में वो संसाधन मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं उसको यूज कैसे करा जाए, यूटिलाइज कैसे किया जाए. ओके, एग्जाम्पल हियर इज जैसे राजस्थान और गुजरात में हमारा पोटेंशियल है कि हम विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. दो हम कर रहे हैं, बट जितनी एनर्जी वहाँ
अवेलेबल है उस अमाउंट में हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। Therefore, potential resource क्या मतलब, जैसे मैं बोलती हूँ बच्चों, you have the potential to do very good in exam, but you are not utilizing it. आपके अंदर potential है, दम है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, हमें पता है इस रीजन में वो रिसोर्स है, लेकिन ये नहीं पता उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसको यूज कैसे करें। ओके, नेक्स्ट इज द डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड नाम से पता चल गया होगा, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ह्यूमंस को पता है, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, हमें पता है कि इस रिसोर्स को कैसे चेंज करना और कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट कम दी कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ प्रेजेंट है, हमें पता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसको कैसे निकालें वहाँ से। ओके, कैसे उस रिसोर्स को हम जाके एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हियर इज H2O है, जैसे हमें पता है वाटर इज H2O, और हमें ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज अ रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत भरपूर एनर्जी मिलती है, पर हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, इसका नहीं पता कि हम इस हाइड्रोजन को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारी एनर्जी जो है उससे जनरेट हो सकती है। ओके, देयरफॉर हियर हाइड्रोजन विल बी टर्म्ड एज द स्टॉक रिसोर्स। ओके, भी पता है कि क्या क्या क्वालिटी है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द लैक ऑफ नो हाउ, वी आर अनएबल टू एक्सेस द रिसोर्स। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, पहले ये समझना है, जो स्टॉक है, जो पता है भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो उसको हम बोलेंगे स्टॉक। लेकिन इस स्टॉक को से कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने पता लगा ली है, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उसको हम टर्म करते हैं रिजर्व। देयरफॉर रिजर्व इज टर्म्ड एज द सबसेट ऑफ द स्टॉक, क्योंकि स्टॉक से ही निकल के आया है, देयरफॉर सबसेट है इसका। ऑल्सो क्यों निकाल पाया है, क्यों पता चला इसका यूज, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है इसकी। ओके, एग्जाम्पल इज जैसे हम वाटर ऑफ रिवर को यूज करते हैं टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू नो थिंग दैट इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू माइन द मैग्नीज नोड्यूल इन द इंडियन ओशन। हमने पढ़ा था 200 नॉटिकल माइल के बाद हमारा EEZ खत्म हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बियॉन्ड हम जाके कुछ भी वाटर के अंदर नहीं कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ वाटर। देयरफॉर इंडिया के पास एक राइट है कि वो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स जा सकता है इन द इंडियन ओशन टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। We have understood that human needs resource to satisfy their need. Therefore, some resources need to be developed so that humans can need them in their day-to-day life. But we address some problem in developing these resources. Now let's see first what is the problem in the process of development of resource. Now, number one thing is depletion of resources, because everybody is dependent on these resources, therefore this is leading to the depletion, मतलब अब संसाधन हमारे खत्म होने लगे हैं। Okay, second problem here is accumulation of resources in the few hand. As you all know, the society is divided into the rich and the poor. Rich means the haves, जिनके पास है सब चीजें, and poor have not, जिनके पास चीजें नहीं है। Therefore, problem क्या है, जिनके पास पैसा है, those are rich, they have the more of the resources, they accumulate all the resources, इकट्ठा कर लेते हैं so that उनके future needs, उनकी needs ना affect हो। इसकी वजह से जो poor है, जो have nots है, उनको resources नहीं मिलते हैं। Therefore, the problem of accumulation of resources in few hand arises. Next problem here is indiscriminate use of resources leading to the global crisis. When I say बहुत ही बिना सोचे समझे irrationally तब लोग resources को use करते हैं, उसके वजह से बहुत सारी problems आती हैं, not only in our nation but also at the global level. Okay, example here are due to the pollution, various global warming happened and this is a concern of global crisis. हुआ हमारे globally, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हुई, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, देयर आर मेनी मोर अदर क्राइसिस व्हिच हैपेंड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द
indiscriminate use of the resources. So here there is a trick to learn this problem. You can learn by DAI, D-A-I. D means depletion of resources, A means accumulation in few hands, and I means indiscriminate use of resources. So you have noticed that there is problem in the development of resources. So there arise the need of equitable distribution. भाई बराबर हिस्सों में बांटा जाए रिसोर्सेज को, so that हर किसी को रिसोर्सेज मिले. ओके, एंड जो हमने अभी प्रॉब्लम्स पढ़ी वो प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े. Therefore the concept of planning comes in. अब प्लानिंग की रिक्वायरमेंट आएगी. Before we get into the planning process, let's first understand few terms which are very important from the viewpoint of your examination, and these are the some terms that you have 99.9% chances that you will find a question in your exam. Okay, so this term is sustainable development. When I say sustainable development, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन उस हिसाब से हो कि हमारे जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो, और डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट आज की जरूरत को पूरा करने की वजह हम फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. ओके, देयरफॉर डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेमोराइज इट. Okay, talking about the sustainable development concept, this concept was adopted in 1992 in the Rio de Janeiro Earth Summit. Rio de Janeiro is a place in Brazil. वहाँ ये summit हुई थी 1992 में. ये summit इन लोगों ने बुलाई थी to address the urgent problem of environment degradation and for the socio-economic development at global level. मतलब हम जो हमारे environment degrade कर रहे हैं और हमें सोशली और इकोनॉमिकली ऑल टुगेदर एट ग्लोबल लेवल हम कैसे डेवलप करेंगे. ओके, दिस समिट वाज ऑल अबाउट दिस. इस समिट के अंदर दे अडॉप्टेड एन एजेंडा कॉल्ड एजेंडा 21. एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It means the need of the present is not compromising the need of the future. Okay, so they have signed this agenda 21 on United Conference on Environment and Development. Okay, and aim of this agenda is to combat the problem. इन सारी प्रॉब्लम्स से हम कैसे लड़ सकते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी है, माल नरिश्ड है लोग, ठीक है. तो इन चीज़ों से हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, इज विद द कोऑपरेशन ऑफ एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. व्हेन आई से एवरी लेवल, ये नहीं सिर्फ सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल वर्क in this direction, or not only the state government but also the local level which comprises of the local communities. उनका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है. Therefore इसका एम क्या था एजेंडा 21 का, इसने लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे भी एम्फसाइज किया कि इन लोगों का, लोकल कम्युनिटी का भी कॉपरेशन इज वेरी मच नीडेड एज वी नीड द कॉपरेशन ऑफ आवर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो now we'll discuss about the resource planning. भी planning क्यों ज़रूरी है. Okay, planning is required for the wise or the judicious use of resource. When I say judicious, it means the wise use only. भी कैसे हमें resources को अच्छे से प्लान करके यूज़ करना चाहिए ताकि प्रेजेंट जनरेशन का हमारी नीड भी कंप्लीट हो, फुलफिल हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. As you all know, the regions are divided into two categories. Okay, all over the world. Some regions are sufficient and some regions are deficient. Sufficient मतलब कि भरपूर अमाउंट में वो चीज़ वहाँ प्रेजेंट है. Deficient मतलब वहाँ वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है. Therefore, it calls for the concept of resource planning so that resource planning is balanced at all the levels, central level, state level and local level. Now talking about this deficient and sufficient region, जैसे कि कुछ स्टेट है हमारी इंडिया में लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन वाली स्टेट में, इन राज्यों में मिनरल और कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है. Whereas in states like अरुणाचल प्रदेश, वहाँ वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो यू कैन नो दैट कि हर रीजन के पास हर चीज़ सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है.
तो कुछ रीजन में वो चीज़ ज़्यादा है, मतलब भरपूर अमाउंट है, सफिशिएंट है उनकी नीड फुलफिल करने के लिए, लेकिन डेफिशिएंट मतलब कुछ रीजन्स के पास वो चीज़ नहीं है, दे लैक इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज. Therefore, resource planning comes into the process. Now, learning about the planning process, how this process happens. So, number one thing here is planning is a complex process. When I say complex, it means it includes various steps. Okay, so number one step is you need to identify or use inventory of the resource across the region. पहले तो रीजन या क्षेत्र को ढूंढना पड़ेगा, किस क्षेत्र में वो सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, कुछ रिसोर्सेज हमें मिलेंगे. Therefore we need to identify and use the inventory skills. मतलब ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा. Okay, after identification there comes the planning structure. Planning structure will include our technology, skill and institution setup. भाई अब पता चल गया है यहाँ वो रिसोर्स अवेलेबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, कौन सी स्किल यूज करें और कैसे हम वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें जिससे हम उस रिसोर्स को वहाँ से निकाल सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड. नेक्स्ट स्टेप हियर इज आफ्टर फाइंडिंग ऑल दिस एंड planning the structure, you need to match the resource development plan with the national development plan. मतलब कि जो तुमने रिसोर्स प्लान बनाया था, भाई इस रिसोर्स को हम डेवलप करके इस वे में यूज कर सकते हैं, उसको आप मैच करोगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कि इन कमिंग टाइम क्या इसकी हमारा स्टेटस रहेगा, कितनी हेल्पफुल रहेगी ये ह्यूमन बींग्स के लिए. ओके, आफ्टर प्लानिंग देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन. Conservation means using the resources rationally and in a proper amount. Okay, भाई कंजर्व बचाने की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, जैसे हमने प्रॉब्लम से पढ़ा था DIA, डिप्लेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, एंड I you need to mention in the comment section what does I stands for. Okay, तो उन प्रॉब्लम की वजह से क्योंकि रिसोर्स हमारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, वी नीड द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन. ओके, कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है. एज यू नो रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, बट ड्यू टू द इरैशनल कंजम्पशन, बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा लोग वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को, रिसोर्सेज को, और उनका ओवर यूज भी करते हैं. दिस इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ and the need for the conservation of these resources. इसलिए इनको बचाने की जरूरत पड़ती है. Now guys, it's time for tone your brain. You need to answer this question in the comment section. So your questions for the day is, you need to define resources, define the type of resources, and what are the problems that we face in development of resources. Guys, comment this all these questions in the comment section. And do not forget to like, share and subscribe to my channel. And most importantly, please press in the thumbs up icon under my video. Thank you so much for watching this video. I am signing off here right now. See you very soon.